Good morning friends. I welcome you all on my YouTube channel which name is Effort Foundation Classes. On this channel we try to cover various major subject which is related to UPSC CSC examinations, and these subjects are physical geography, environment, science and technology and economy. And all subject which we are gonna cover are equally relevant for both pre and mains examinations. Okay students, in previous two lecture we discuss about the structure of our earth, and we see what's the latitude and what's the longitude, and we see major latitudes of our earth and different heat zones. And one message for those students who are new on my YouTube channel: first you have to watch the previous two videos for understanding today's videos, because these videos are in interlinkage. अदरवाइज आज की वीडियो आपको समझ नहीं आएगी और आप अननेसेसरी मुझे गालियां दोगे कमेंट सेक्शन में. ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो लेट्स स्टार्टेड टुडे लेक्चर. टुडे we first discuss about the difference between latitude and longitude. So lesson number is 3. Okay student, we compare with the diagram, two different diagram, and I simultaneously dictate you have to write that points. Okay student, and don't worry about the language of this course because I am also gonna explain in Hindi. Okay student, चलो फिर हम अर्थ के दो डायग्राम ले लेते हैं. ये पहला डायग्राम है. सो जैसा कि आपको सबको पता है ये क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, 90 degree north pole and 90 degree south pole. This equator divide our earth into two equal hemisphere, northern hemisphere and southern hemisphere. Okay students, why we call the northern hemisphere as a positive latitude and why we call southern hemisphere as a negative latitudes? Because in northern hemisphere there is a more land and less water. In southern hemisphere more water, less land. Okay student, and the latitudinal distance, not latitudinal distance, latitudinal length goes on decreasing from equator toward the pole. Okay, और आप सभी को एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हमने टॉपिक कवर कर लिए हैं उनके हैंडआउट्स मींस नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है एफर्ट फाउंडेशन क्लासेस. I share latitude, longitude handouts and time zones and earth movement, season formations and day and night formation handouts. Okay student, so latitude, longitude,
longitude is equal in length, okay, and latitude's length goes on decreasing from equator to poleward. And longitudes are the semicircle which are equal in length crossing the center of our earth, mean equator of our earth, from north pole to south pole. ठीक है. And today's topic is one of the most important topics of physical geography. If you can't understand today's lecture, it's gonna very difficult for you to understand upcoming lecture. So your focus must be on whiteboard, okay. And if you unable to understand, so first you have to watch the video again, and otherwise you have the comment section. You can comment your doubt in comment section. I give a appropriate solution in comment section, or otherwise in upcoming classing first I take your doubt and then proceed further, okay. So note down the first difference. So first you have to draw a line. This side you have to write equator latitude, and this side you have to write longitude. So first write in latitude. The latitude distance, latitude length goes on decreases. The latitude length goes on decreasing from equator to north pole and south pole. And you have to write in longitude. Longitudes are semicircle which crosses the equator. Longitudes are semicircle which crosses the equator, and all longitudes merge in north pole and south pole, okay. So another you have to write longitude give us the location of a place, either that particular place in northern hemisphere or southern hemisphere. And write in the longitude. Longitude help us to find the time zone of a particular place, okay student. जैसे ये लॉन्गिट्यूड है, अब हमारा ग्लोब है, ग्लोब पे 360 एंगल, मतलब एक सर्कुलर बॉडी में 360 रोटेट करती है, ओके। जो हमारी अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, ठीक है। जैसे ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, ओके स्टूडेंट। अब हम किसी भी लॉन्गिट्यूड को एक नाम डोनेट कर सकते हैं ताकि हम अदर जो लॉन्गिट्यूड है उनकी पोजीशन को प्लेस कर सकें, ठीक है। सो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था 1884 के अंदर, जिसमें कि भी 0 डिग्री मेरिडियन को, लॉन्गिट्यूड को हम मेरिडियन भी बोल देते हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, तो हमने 0 डिग्री को एज ए प्राइम मेरिडियन डोनेट किया। क्यों किया? ताकि हम इसके ईस्ट और वेस्ट साइड के जो लॉन्गिट्यूड हैं उनको नेम दे सकते हैं, ओके। तो ये जो 0 डिग्री मेरिडियन है ये कहाँ से पास होके जाता है? ये पास होता है रॉयल
एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच इन लंदन। ओके स्टूडेंट, ये एग्रीमेंट कब हुआ था? 1884 के अंदर हुआ था। सो ये है हमारा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में 180 डिग्री ईस्ट तक जितने भी लॉन्गिट्यूड है उसको, वो कहाँ पे है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। और प्राइम मेरिडियन के वेस्टर्न में जो 180 डिग्री है वो क्या कहलाते हैं? वो कहाँ पे है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। ओके स्टूडेंट, अब जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है, जो ये है, ये गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोलवर्ड। जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोलवर्ड की तरफ चलते जाएंगे, टू लॉन्गिट्यूड के डिफरेंस कम होता जाएगा। और आप ये भी कह सकते हो कि जो डिफरेंस है, जो इनका, ये एक दूसरे के, दो लॉन्गिट्यूड हैं, एक दूसरे के नज़दीक आते जाएंगे। ओके स्टूडेंट, लेट अस स्टडी द टाइम जोन ऑफ आवर अर्थ। अब जो हमारी अर्थ है वो 24 टाइम जोन में डिवाइडेड है। कितने टाइम जोन के अंदर? 24 टाइम जोन्स के अंदर। ओके, आवर अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स। एंड व्हाट इज ए मैप? मैप इज ए फ्लैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर अर्थ। ओके स्टूडेंट, आवर अर्थ रोटेट ऑन हिज एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। कहाँ से? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है। तो 360 बाई 24 आवर कितना हुआ? 15 डिग्री। ओके, 15 डिग्री मीन 1 आवर। ठीक है, तो 7.5 मिनट, 7.5 डिग्री मीन 30 मिनट, एंड 1 डिग्री मीन 4 मिनट। सिंपल साइंस, सिंपल मैथमेटिक्स। पर कहीं स्टूडेंट को इसमें भी डाउट होगा। अगर जो आपको इसमें भी डाउट है ना स्टूडेंट, तो आप सही टाइम आ गया है डोली चाय वाले को कंपटीशन देने का। ठीक है ना? अदरवाइज यू आर अनफिट और अनेबल टू क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बिकॉज टूडेज कंपटीशन इज सो हाई। सो बहुत से स्टूडेंट्स से कहते हैं सर हमें ये समझ नहीं आ रहा है ये क्या चीज़ है। अब इसमें क्या है, जो अर्थ है वो 360 रोटेट, कोई भी 360 वन रोटेट जो अर्थ है वो अब एक्सिस पे रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। 1 सर्कल कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है? 1 घंटा लग रहा है। तो 360 रोटेशन बाय 24 आवर, उसको हम डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। तो मतलब 15 डिग्री जब हमारी अर्थ रोटेट करती, 1 आवर में कितने डिग्री रोटेट करती है? 15 मिनट। एंड 30 मिनट में कितनी करती है? 7.5 डिग्री। 4 मिनट में कितने डिग्री रोटेट करती है? 1 डिग्री। अब जैसे अर्थ वेस्ट टू ईस्ट वर्ड वो कर रही है, रोटेट कर रही है, तो वेस्ट टू ईस्ट, जो ईस्ट में जब हम मूव करेंगे, एवरी 15 डिग्री हुई मूव टुवर्ड ईस्ट, हुई गेन द टाइम, एंड एवरी 50 डिग्री हुई मूव westward, who will lose the time. And it's very difficult to teach a camera because you unable to judge how your student
getting what you are teaching. It's very difficult sometime. And students, टीचर को भी पढ़ाने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है. आपको लगता है कि नहीं होती, पर सच में टीचर को पढ़ाने के लिए भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है. तो इस चीज़ को हम एक बार समझ लेते हैं. जैसे ये हमारी अर्थ है. ओके, अर्थ, अब ये हमारी क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन. व्हाट इज एक्सिस? एक्सिस इज ए imaginary line which passes through the north pole and south pole. ओके, अब यहाँ से वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है. ये हमारा सन है. ओके, और ये सन रेज हमारी कहाँ पड़ रही हैं, अर्थ पे पड़ रही हैं. ओके स्टूडेंट, अब इसको आप मान लो प्राइम मेरिडियन. मैं इसको पीएम से डोनेट कर रहा हूं. ओके, अब हमें डिफरेंट कलर के मार्क की ज़रूरत है. जैसे मैं ये ग्रीन कलर का मार्कर ले रहा हूँ. जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, ये क्या है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. ठीक है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है. अब वेस्ट टू ईस्टवर्ड डोनेट, हमारी जो अर्थ है वेस्ट टू ईस्टवर्ड रोटेट कर रही है. अब जैसे ईस्टवर्ड, एवरी 50 डिग्री हुई मूव इन ईस्टवर्ड, हुई गेन 1 आवर. ओके, और एवरी 50 डिग्री हुई मूव इन वेस्ट, हुई लूज 1 आवर. ओके, every 7.5 minutes we move eastward, we gain 30 minutes. Every 7.5 minutes we move westward, we lose 1 hour 30 minutes. Every 1 degree we move in eastward, we gain 4 minutes. Every westward we move, we lose 4 minutes. So सन की रेज इस पे पड़ रही हैं, तो यहाँ क्या है, डे, और इधर क्या है, नाइट. होप ये क्लियर होगा आपको. अब स्टूडेंट, आप कंप्लीट फोकस अपना वाइट बोर्ड पे रखें. हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम जोन्स. ठीक है, आपको मेरे साथ डायग्राम करो, मेरे साथ इस डायग्राम को ड्रॉ करो. ये क्या है, ये है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन. ओके स्टूडेंट, ये क्या है, 180 डिग्री वेस्ट हेमिस्फीयर. प्राइम मेरिडियन के ईस्टवर्ड क्या है, 180 डिग्री ईस्टर्न हेमिस्फीयर. ओके स्टूडेंट, सो एवरी 50 मिनट हुई गेन 1 आवर. ठीक है ना. सो हम 50 मिनट के डिफरेंस पे ले रहे हैं. तो ये 0 डिग्री है. आई एम वीक इन मैथ, सो फॉरगिव मी इफ आई मेक एनी मिस्टेक. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ,
7th, 8th, 9th, 10, 11 and 12. ये 0 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, 13, 45, 60, 75, 105, 120, 135, 150, 165 and 180. ओके स्टूडेंट, ऐसे ही हम वेस्टवर्ड जो लॉन्गिट्यूड है उसको ड्रॉ कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and the last one is 12. 15 degree of westward, 13, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 and 180 degree. These all are in degree. Okay students, so don't be confused. And this side also. Okay, so that's the 0 degree prime meridian. तो हमारे प्राइम मेरिडियन पे क्या है, नून है. नून मतलब 12 बज रहे हैं. ओके, अब जैसे हम ईस्टवर्ड मूव करेंगे तो हम गेन करेंगे, वेस्टवर्ड हम मूव करेंगे तो लूज़ करेंगे. तो हम एवरी 1 आवर गेन करेंगे, क्योंकि हमने डिस्टेंस क्या लिया है, 15 डिग्री लिया है. तो हमने पीछे मैथमेटिकली समझा है कि जब हम 50 डिग्री ईस्ट में मूव करेंगे तो 1 आवर गेन करेंगे, 7.5 मिनट करेंगे तो 30 मिनट करेंगे, एंड 1 डिग्री मूव करेंगे तो हम कितना टाइम गेन करेंगे, जब ईस्ट में मूव करेंगे तो 4 मिनट करेंगे. सेम इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ओके, सो हेल्प मी. अगर यहाँ पे 12 नून है तो हम ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या होगा, 1 PM. Let me change the marker. ये 1 PM है, ये 2 PM है, 3 PM, 4 PM, 5 PM, 6 PM, 7 PM, 8 PM, 9 PM, 10 PM, 11 PM and 12 PM. Okay. (11 AM), 12 AM. No. Yes, 11 AM.
10 AM, 9 AM, 8 AM, 7 AM, 6 AM, 5 AM, 4 AM, 3 AM, 2 AM, 1 AM, and then 12 AM. Okay students, होप ये आपको समझ आया होगा। हम 50 डिग्री मूव कर रहे हैं ईस्टवर्ड तो हम गेन कर रहे हैं, और 50 डिग्री हम जब वेस्टवर्ड मूव कर रहे हैं तो हम लूज़ कर रहे हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन है, ठीक है ना। 24 जो हमारी अर्थ है, 12 ईस्टवर्ड 12 वेस्टवर्ड, तो कितने टाइम जोन हो गए? 24 टाइम जोन हो गए। इसमें न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, ठीक है ना। सो व्हाट्स द टाइम ऑन 45 डिग्री ईस्टर्न हेमिस्फीयर व्हेन देयर इज 2 PM ऑन प्राइम मेरिडियन। ओके, तो इसको हम कैसे देखेंगे? 45 डिग्री पे हमें बताना है कि क्या टाइम हो रहा है, और जो मेरिडियन पे है वो कितने बज रहे हैं? 2 PM। प्राइम मेरिडियन पे क्या टाइम हो रहा है? 2 PM। सो सिंपली फर्स्ट कन्वर्ट इन मिनट्स। 45 इंटू 4 180। 180 को डिवाइड करो 60 मिनट से, ये 3 आवर्स, ठीक है ना। अब हम ईस्टवर्ड मूव कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। तो 2 PM अगर जो प्राइम मेरिडियन पे है, प्लस हमें 3 आवर, तो कितना हो गया? 5 आवर। अब 5 आवर है, अब आपको दिख रहा है 3 आवर है, पर इससे कंफ्यूज मत होना क्योंकि मैंने प्राइम मेरिडियन पे 12 की जगह 2 PM लिया है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। पहले तो ये प्री में पूछ लिए जाते थे, GS में भी पूछ लिए जाते थे, पर आजकल जनरल स्टडीज़ के पेपर्स में, पर आजकल इसको CSET में ही पूछते हैं, वो भी कभी कभार। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन को GMT भी बोलते हैं। GMT का मीन ग्रीनविच मीन टेम्परेचर भी बोल देते हैं, और ग्लोबल मीन टेम्परेचर भी बोल देते हैं इसको। होप्स दैट्स फ्लैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर अर्थ डिफरेंट टाइम जोन्स, यू अंडरस्टैंड। सो अब जैसे कई कंट्रीज ऐसी हैं जिनका ईस्ट वेस्टवर्ड जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन हो सकते हैं। जैसे USA और कनाडा, USA एंड कनाडा, कितने टाइम जोन है? 5 टाइम जोन है। अब रशिया के अंदर, रशिया सबसे वर्स्ट कंट्री आपने देखा होगा इन वेस्ट और ईस्ट वर्ल्ड लेंथ में। तो पहले यहाँ पे 11 टाइम जोन थे, अब कितने हैं? अब यहाँ पे 9 टाइम जोन है, रिड्यूस कर किया इन्होंने। अब जो फ्रांस है, सबसे ज़्यादा टाइम जोन है यहाँ पे, 15 टाइम जोन है। तो इंडिया में कितने टाइम जोन है? इंडिया में 1 टाइम जोन है, इंडिया में 2 टाइम जोन है। अब जैसे हर एक कंट्री हो अपना टाइम जोन, अपने कंट्री का टाइम किस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अगर जो स्टूडेंट्स हर कंट्री अपना डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन बनाने लगे तो ट्रैवल को बहुत दिक्कत होगी, ठीक है ना, क्योंकि एवरी 4 डिग्री हुई मूव देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 4 मिनट, ठीक है ना। अगर जो हम ईस्ट में मूव करेंगे तो 4 मिनट लो गेन करेंगे, और वेस्टवर्ड मूव करेंगे तो 4 डिग्री लूज करेंगे। तो इस जो कि ये प्रोसेस है ये हैट्रिक हो जाएगा जो ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है ना। और ट्रैवल हो ही रहा है थ्रू आउट द ग्लोब्स, जैसे मर्चेंट ट्रैवल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट शिप्स, एंड ट्रांसपोर्ट मोड हो गए हमारे, जैसे एयरवेज से हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा
तो इसलिए हमने अगर जो जैसे एक कंट्री है, कंट्री से एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड होकर क्रॉस होता है, ठीक है ना। तो एवरी कंट्री, सभी कंट्री ने अपना एक सेंट्रल मेरिडियन को चुन लिया है कि भाई उनके सेंट्रल मेरिडियन, किस मेरिडियन से वो कैलकुलेट करेंगे टाइम को। जो इंडिया का वो सेंट्रल मेरिडियन है वो कहाँ से होकर गुजरता है, मिर्ज़ापुर से, ठीक है ना। इंडिया के इसमें क्या है, मिर्ज़ापुर, वो कितना है 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है ना। तो इसको हम उसमें कन्वर्ट करेंगे मिनट्स के में, तो ये कितना हो जाएगा आवर्स के अंदर 5 आवर एंड 30 मिनट। सो हम डिफरेंस लेंगे प्राइम मेरिडियन एंड इसके बीच का, ठीक है ना। तो हमारा जो सेंट्रल मेरिडियन है वो 5 आवर 3 मिनट्स प्लस में है प्राइम मेरिडियन से, ठीक है ना। ऐसे ही डिफरेंट कंट्री सभी ने अपना एक सेंट्रल मेरिडियन ले रखा है, उसको हम स्टैंडर्ड टाइम जोन भी बोल देते हैं, जिससे वो कंपेयर करते हैं प्राइम मेरिडियन से और अपनी कंट्री को एक टाइम दे देते हैं, जिससे कि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या देख लिया, टाइम जोन देख लिया और टाइम जोन पढ़ लिया हमने डिफरेंट कि कितने टाइम जोन में हमारी अर्थ को डिवाइड किया है। अब हमने सेंट्रल टाइम जोन, जिसे स्टैंडर्ड टाइम जोन भी बोल देते हैं, वो भी हमने देख लिया, छोटा सा ही टॉपिक था, ठीक है ना। अब हम क्या देखना है, इंटरनेशनल डेट लाइन को देखना है। ओके स्टूडेंट, अब जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, अब कोई पर्सन मान लो ए यहाँ पे है प्राइम मेरिडियन में, वो ईस्टवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है ना। वो कब तक टाइम को गेन करेगा, वो 180 डिग्री तक, मतलब 12 आवर तक, 180 डिग्री लास्ट है, ईस्ट में मूव कर सकता है, तो 180 तक मूव करेगा और 12 आवर को गेन करेगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर जो वेस्टवर्ड को मूव करता है वो कहाँ तक मूव करेगा, टिल 180 वेस्टर्न हेमिस्फीयर तक, और वो कितने आवर गेन करेगा, 12 आवर गेन करेगा, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 24 आवर्स। सो एक प्लेस हमारी अर्थ पे ऐसा आएगा जैसे कि अगर जो उसको क्रॉस करते ही टाइम्स रिमेन द सेम बट डेट चेंज, तो जो उसको क्रॉस करेगा टाइम तो सेम रहेगा पर जो डेट है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। सो ये सिचुएशन कहाँ पे आएगी, ये 180 डिग्री पे आएगी, ठीक है ना, 180 डिग्री। जैसे ये 180 डिग्री में ले लेता हूँ, ये 180 डिग्री है, ठीक है ना। ये है वेस्टवर्ड और ये है ईस्टवर्ड, ठीक है ना। सो हमारे वेस्ट में क्या है, मान लो एक जापान है, मान लो नहीं है, और ईस्टवर्ड क्या है, यूएसए है। अब कोई पर्सन है 31 ऑफ जैन है, ठीक है ना, 2023, सेम डे ही क्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, जैसे ही वो इस डेट लाइन को क्रॉस करेगा तो यहां पर टाइम तो सेम होगा पर डेट चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर ले लो स्टूडेंट इसको, तो यहां क्या आएगा 1 जैन 2024, तो अपना न्यू ईयर मिस कर जाएगा वो, ठीक है ना। विद इन ए मिनट द डेट विल चेंज, ठीक है ना। जैसे ही वो यहां से इधर मूव करेगा वो लूज कर जाएगा। सपोज द सेम पर्सन
31 दिसंबर 2023 को वो यूएसए टू जापान मूव करता है। ओके, इसको 1 जैन ले लो, 1 जनवरी को सेम पर्सन मूव कर रहा है कहाँ से, यूएसए टू जापान। तो यहाँ पे क्या होगा, 31 दिसंबर 2024। ओके, सो ही गोना सेलिब्रेट न्यू ईयर 2 टाइम। ओके, जैसे इंटरनेशनल डेट लाइन को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे वैसे ही डेट चेंज हो जाएगी। इसका सिंपल समझने का मेथड यही है। सो ईस्टवर्ड, व्हेन ए पर्सन मूव वेस्ट टू ईस्ट ही गेन, एंड व्हेन ए पर्सन मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ही लूज अ डे। ओके, जो हमारी ये इंटरनेशनल डेट लाइन है ये स्ट्रेट नहीं है 180 डिग्री, ये जिगजैग फॉर्म में है, जैसे ऐसे हो सकती है। ये आपने देखा हुआ है, मैं हैंड आउट शेयर करूंगा उसके अंदर आपने देख लेना इसको, ये ऐसे करके है। तो एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये जिगजैग क्यों है। ये जिगजैग फॉर्म में इसलिए है कि सपोज ये आइलैंड है, तो यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे आइलैंड हैं जो ये 180 डिग्री है उनके बिल्कुल क्रॉस, बीच में से क्रॉस होके जाता है। ठीक है ना। अब जैसे ही कोई पर्सन है, जैसे इसको आप इंडिया मान लो, ये दिल्ली ले लो आप, ठीक है ना, ये ले लो राजस्थान। जैसे ही कोई पर्सन दिल्ली से राजस्थान को मूव करेगा तो क्या होगा, तो वो 1 डे लूज कर जाएगा। और जैसे वो राजस्थान से दिल्ली की बार मूव करेगा तो 1 डे गेन कर जाएगा। तो फिर इस लैंड, इस जो कॉन्टिनेंट पे है, ये बहुत ही गलत सिचुएशन, मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो जाएगी। जो लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, ठीक है ना, वर्किंग के लिए जाते हैं, उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो इंटरनेशनल जो डेट लाइन है, तो इन आइलैंड्स को ये छोड़ देती है। जैसे सपोज करो यहाँ पे एक आइलैंड था, तो इंटरनेशनल डेट लाइन किस वर्ड मूव होगी, ईस्ट वर्ड मूव होगी, और वो फिर इसको इस तरफ आ गई। फिर दोबारा यहाँ पे कोई आइलैंड होगा, फिर ईस्टवर्ड, यहाँ पे सिर्फ वाटर है इसलिए ये सीधी स्ट्रेट चली गई। ठीक है। सो स्टूडेंट, वी ऑलमोस्ट कवर द बेसिक्स ऑफ आवर फिजिकल जियोग्राफी। अगर जो कोई छोटा मोटा टॉपिक रहता होगा तो हम उसको इन फ्यूचर देख लेंगे, पर स्टूडेंट्स दीज बेसिक आर सो इम्पोर्टेंट्स। ठीक है ना, मेरे को आपने सुना होगा बहुत बार बोलते हुए कि ये इंपॉर्टेंट्स है। अभी इंपॉर्टेंट्स क्यों है, क्योंकि हम इनका डिफरेंट जगह पे यूज़ करेंगे। जैसे सपोज करो हम एटमॉस्फेयर में विंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई जो विंड है वो इक्वेटर से 30 डिग्री नदर्न एंड 30 डिग्री सदर्न हेमिस्फेयर में मूव कर रही है, या पोलवर्ड टू 60 डिग्री नदर्न हेमिस्फेयर एंड साउथ पोलवर्ड टू 60 डिग्री सदर्न हेमिस्फेयर में मूव कर रही है। तो वहाँ पर मैं आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में नहीं पढ़ाऊँगा। आई सिंपली मार्क द लोकेशन वेयर द विंड इज़ मूविंग एंड गो ऑन। सो इट्स helpful for you if you revise this lecture again and again. ठीक है ना। If you can't understand, watch the video again. It definitely resolve your doubts. Okay students. So एक छोटा सा टॉपिक मेरा भी याद आया है। यहाँ पर एक पेरीहीलियन और एपहीलियन जैसी सिचुएशन होती है। पेरीहीलियन का मतलब जब अर्थ सन के बिल्कुल क्लोज्ड होती है। एपहीलियन का मतलब जब अर्थ सन से बहुत दूर होती है, क्योंकि जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल है, तो इलिप्टिकल है तो हम देख लेते हैं एक बार उसको, आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे एग्जाम के थ्रू, डायग्राम के थ्रू। सो एक पॉइंट हो रहा था स्टूडेंट्स आपका, आई कांट रिमेंबर कि मैंने उसको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया आपको या नहीं बताया। चलो छोटा सा ही है, देख ही लेते हैं, 1-2 मिनट लगेगा। अब जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर है, ये लैटिट्यूड्स जा रहे हैं हमारे,
different. Same in the southern hemisphere. Okay students, so let me draw the longitudes with the marker, green marker. So ये क्या है हमारे, ये लैटिट्यूड्स हैं. ये क्या प्रोवाइड कराते हैं हमें, डिफरेंट टाइम जोन. ये जो लॉन्गिट्यूड है ये 24 टाइम जोन्स में डिवाइड करते हैं अर्थ को. अब जैसे ये है, इसको लगा लो आप 10 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना. अब ये क्या है लॉन्गिट्यूड हमारा 10, ये लगा लो आप 35 डिग्री वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है. जहाँ पे ये हमारी जो 10 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर और 35 डिग्री वेस्टर्न हेमिस्फीयर के लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मीट कर रहे हैं, तो हमें वो एग्जैक्ट पोजीशन बता रहे हैं. किसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की. तो इसका एक स्पेसिफिक नेम है, इसको हम बोलते हैं जियोग्राफिकल ग्रिड. ओके. सपोज इसको एक बार अच्छे से कर लेते हैं. 82 डिग्री 82.5 ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये किससे क्रॉस होके जाती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और यहाँ पे लॉन्गिट्यूड लगा लो आप, XYZ है कोई, मतलब ले लो 10 डिग्री. तो ठीक है ना. जैसे हमारा इस लोकेशन पे क्या होगा, जहाँ पे ये दो लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मीट करेंगे, ये एग्जैक्ट पोजीशन किसकी होगी, मिर्ज़ापुर की होगी, जिससे हमारी सेंट्रल टाइम जोन, सेंट्रल लॉन्गिट्यूड पास होती है, विच गिव अस स्टैंडर्ड टाइम जोन ऑफ इंडिया. Okay, so let me finish the last topic of our physical geography basics. So in upcoming lecture we started with a new chapter which name is soil, और आप उसको रॉक भी बोल सकते हो, सोयल रॉक. अब जो हमारी अर्थ है वो मेजर रॉक से मिलकर बनी होती है. उसको हमने डिफरेंट क्लास में डिवाइड किया है, जैसे इग्निस रॉक होगी, मेटामॉर्फिक रॉक होगी, सेडिमेंट्री रॉक होगी. तो ये हमारी रॉक है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स और मिनरल से मिलकर बनी होती है. तो हम इसको होलिस्टिक बड़ी कंप्लीट वे में समझेंगे. तो नेक्स्ट लेक्चर से हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना. सो स्टे कनेक्टेड विद अस. ये सन है, ओके, और ये ऑर्बिट है, एलिप्टिकल ऑर्बिट है ये, ठीक है. ये हमारी अर्थ है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये भी हमारी अर्थ है. ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है. ये सिचुएशन क्या है, ये हमारी अर्थ है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है. ये हमारी अर्थ है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है. जो अर्थ और सन के बीच में एवरेज डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 94 मिलियन माइल. ये एवरेज है.
अभी सिचुएशन पे क्या है, जो अर्थ एंड सन के बीच का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। वो कितना है, 92.1 मिलियन माइल। ओके, इस सिचुएशन में क्या है, जो अर्थ एंड सन के बीच का डिफरेंस है वो कम है, सपोज 90.8 मिलियन माइल। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, पेरीहिलियन। पेरीहिलियन का मतलब अर्थ एंड सन के बीच का डिफरेंस जो है मिनिमम है। ये सिचुएशन कब होती है, 3 जैन को होती है। अब क्या हो रहा है, जब अर्थ एंड सन क्लोज हैं और ये 3 जैन है, 3 जैन को नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होती हैं, सर्दियाँ होती हैं। जब अर्थ एंड सन के बीच का डिफरेंस कम है तो फिर यहाँ पे सर्दियाँ क्यों होती हैं, गर्मी क्यों नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि जो सन की रेज हैं, ठीक है ना, वो कहाँ पे पड़ रही हैं, वो या तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ इन सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही हैं। जो सन की रेज हैं उनको ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, जिससे उनकी जो सन रेज की हीट है, इंसोलेशन है, वो एटमॉस्फेयर में अब्जॉर्ब हो रही है और मैक्सिमम सनलाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव कर रहा है एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब सेम ये 4 जुलाई है, इसको क्या बोलते हैं, एपहीलियन कंडीशन। तो यहाँ पे क्या है, 4 जुलाई है और सन और अर्थ के बीच का डिफरेंस मैक्सिमम है, तो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियाँ क्यों हैं इतनी, मतलब इतनी इंटेंस समर होता है इस टाइम पे, ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि भाई सन रेज जो हैं वो डायरेक्टली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही हैं। जो अर्थ है वो मैक्सिमम इंसोलेशन एब्जॉर्ब कर रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना। जो एटमॉस्फेयर है वो क्लीन है, ठीक है ना। शॉर्ट एंड डिस्टेंस सन रेज को ट्रैवल करना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर समर लाइक सिचुएशन हो रही है। ओके, ये आपको सविंदर सिंह में मिल जाएगा। मैंने आपको बोला था, एक तो फिजिकल जियोग्राफी, ऑफ सविंदर सिंह, ये बुक खरीद लेनी है। एक स्कूल एटलस खरीद लेनी है, ऑक्सफोर्ड नहीं खरीदनी, स्कूल एटलस खरीद लेनी है। ये 2 चीज़ें मैंने आपको बोला था। सविंदर सिंह की क्लाइमेट अलग अलग सब्जेक्ट पे भी आती है, क्लाइमेटोलॉजी पे आती है, ओशियनोलॉजी पे आती है, ठीक है ना। और तो आपको सिर्फ फिजिकल जियोग्राफी लेनी है, इसके अंदर आपके सभी जो चैप्टर हैं वो कवर हो जाएंगे। और इसको आपको कंप्लीटली नहीं पढ़ना, मैं इसको आपको मार्क करा दूंगा, ठीक है ना, क्या क्या चीज़ पढ़नी है। माई लेक्चर प्लस विच आई मार्क in Savinder Singh and handouts I provide on Effort Foundation classes is sufficient for you to clear the UPSC CSC examination. Okay students, so that's all about the physical geography basics in okay students, so हम एक नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, सोइल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, which is a very interesting and dynamic subject, not subject, ठीक है ना, dynamic new chapter. Okay, so thank you all, meet you in the next lecture.